نے تحریک انصاف کے بانی کو جو بہادری کا ایوارڈ دیا، ہم نے کچھ کہا؟ میرا رہنما وہ نہیں، میرا لیڈر تھا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسا انہوں نے بیان کیا، وہ تھا ذوالفقار علی۔ یعنی آپ نے اپنے لیڈر سے بڑا کریڈٹ دے دیا اس کو۔ یہ ساری باتیں میں نے کی، آپ نے کہی، ایک بات میں نے یہ کی کہ وہ ہمارا مضبوط آدمی ہے، میں نے کہا آپ اپنے آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ان میں سے ایک الفاظ میں نے نہیں کہا۔ ارے کہا ہے انہوں نے، بھائی آپ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ نے کہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج کی پہلی خبر ہے جی، نون لیگ نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے اور اس کی تصدیق کی ہے محمود خان اچکزئی نے۔ اس سارا معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ طوفان اسنا اور اس کا خطرہ اب کتنا رہ گیا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور نواز شریف صاحب بھی دوبارہ سامنے آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، اور انہوں نے کیا کہا اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، آپ دانشور سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، عارف صاحب تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے نوید زبیری صاحب کیا کہیں گے، نون لیگ اور پی ٹی آئی بیک ڈور ڈپلومیسی، بیک ڈور رابطے تصدیق کر دی ہے باقاعدہ محمود اچکزئی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل رابطہ ہوا ہے اور وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی اس میں اب بات یہ ہے کہ اس میں خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، ان سے جب ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی پہ معافی پہلے مانگی جائے، اس کے بعد ان سے بات چیت ہونی چاہیے تھی۔ کیا کہیں گے اب اس رابطے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ معاملات آگے بڑھیں گے یا صرف رابطے تک کی بات رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک پازیٹیو بات کو میں ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں، اور رابطے کرنے کی پہلے بھی کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہ ان سے رابطہ نہیں کر رہے تھے، یہ ان سے رابطہ نہیں کر رہے تھے، تو بیچ میں محمود خان اچکزئی جو تحفظ پاکستان جو بنائی ہے ان لوگوں نے، اس کے سربراہ بھی ہیں، تحفظ آئین پاکستان، آئین پاکستان، تو وہ ان کے ذریعے ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور اب تو تصدیق بھی ہو گئی۔ میں تو بہت پہلے سے بول رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ بھی ان سے رابطے میں ہیں اندر، میرے بھائی کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن بھائی ظاہر ہے اسلام آباد سے آئے ہیں، پوچھتے ہیں کیا خبریں لے کر آئے ہیں؟ جا بجا یہ خبریں آئی جاتی ہیں باہر کے، ہاں فلاں سے رابطے، فلاں سے رابطے۔ تو دیکھیں، جو سیاسی جماعتوں میں رابطے ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے ہی کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ رابطے نہ ہونا، ڈیڈ لاک ہونا، یہ ایک بری بات ہوتی ہے سیاست میں، خاص طور سے جمہوریت کے لیے۔ رابطے ہو رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ کچھ آئینی ترمیم میں جو حکومت لانا چاہتی ہے اس میں ان کو اعتماد میں لے رہے ہوں، ان کی حمایت چاہ رہے ہوں، کچھ اس قسم کی بات ہو، اور ظاہر سی بات ہے جب رابطے ہوتے ہیں دو طرفہ ہوتے ہیں، کچھ لینے کی بات ہوتی ہے تو کچھ دینے کی بات بھی ہوتی ہے۔ آئینی ترامیم کیا اس قسم کی ہیں کہ جس کو پی ٹی آئی کے ابھی حق میں جائیں گی، فیور میں جائیں گی؟ جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا، ہو سکتا ہے کچھ ایسی ہوں جس میں دونوں جماعتوں کا ایک وہ ہو، کنسنسس ہو، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو سب سے اچھی بات ہے یہ ہے کہ وہ دیں گے کیا، دے کیا سکتے ہیں، اور دینے والے ان کو کتنا اجازت دیں گے۔ خواجہ آصف کو کہا، ظاہر سی بات ہے خواجہ آصف کو تو برا ہی لگے گا، کیونکہ ان کا تو ہمیشہ سے موقف ہے کہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ معافی مانگیں، یہ معافی مانگیں، وہ مانگیں۔ وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بات کی وہ ایک سیاسی بات ہے کہ جی وہ پہلے معافی مانگیں، اگر انہوں نے معافی تو مانگی نہیں، اس کی مذمت ضرور کی ہے، معافی نہیں مانگی، اگر وہ پھر بھی وہ ان سے بات کر رہے ہیں تو خواجہ صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی قیادت سے پوچھیں کہ جی آپ نے کہا تھا ان سے رابطے کے لیے کہ نہیں، اگر کہا تھا تو خوشی خاموش ہو جائیں اور چپ کر کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی قیادت کے اپنے فیصلے ہیں سب؟ جی، سیاسی قیادت کے جو فیصلے ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے تو ان کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اور جگہ سے بھی اس پہ اس ٹائم ہوئی بھی ہوگی، اجازت ہوئی ہوگی، ورنہ اتنا تو آزاد مجھے یہ گورنمنٹ اتنی طاقتور تو نظر نہیں آتی کہ اپنے آپ اتنے بڑے فیصلے کر لیں بغیر اعتماد میں لیے مقدرہ قوتوں کو، ایسا مجھے لگتا نہیں ہے۔ انیس منصوری صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو یہ رابطے آپ مسلسل کہتے آئے ہیں کہ فی الحال نہیں نظر آ رہے آپ کو، لیکن اب تو تصدیق کی ہے محمود خان اچکزئی نے کہ بھی رابطہ ہوا ہے۔ ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ کہاں تک بات ہو چکی ان کے ساتھ، لیکن رابطہ ہونا بھی آپ نے سمجھتے خوش آئین، جس سے انہوں نے کہا جی بڑی مثبت بات ہے، اچھی بات ہے، سیاسی جماعتوں میں آپس میں ڈائلاگ ہونے چاہیے، رابطے ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے؟ بہت شکریہ علی آپ کا۔ پہلی بات یہ کہ میں نے جن سے رابطوں کا کہا ہے ان سے ان کا رابطہ نہیں ہوا ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جلسے کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ کون سی باتیں دیکھنے کے بعد؟ جو جلسہ کینسل ہوا سر، ابھی تک وہ رابطہ نہیں ہوا جسے آپ رابطہ کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ڈائلاگ، کچھ لو کچھ دو، وہ بات نہیں ہوئی ہے۔
मतलब किसी के ज़रिए रब्ता होना उनकी मर्ज़ी के बगैर। सर जो पैगाम रसा था ना वो आजकल खुद सफाइयाँ दे रहा है कि खुदा की कसम मैं नहीं था। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बात कहाँ तक, अब वो खुद कह रहा है कि यार गलती हो गई। सही है, तो वो छोड़ दीजिए। इसमें वो एक शेर है ना, ये दावर हश्र मेरा नाम अमाल ना देख, इसमें चंद पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो जाने दीजिए। आप बात ये पूछ रहे हैं मुझसे कि जो राब्ते हो रहे हैं, तो ये जो राब्ते अभी जो आपको बज़ाहिर राब्ते नज़र आ रहे हैं, ये जो एनर्जी नज़र आ रही है कि मौलाना के पास भी जाया जा रहा है, ये राब्ता भी हो गया कि जनाब ये अचकज़ई साहब के पास भी जाया जा रहा है। देखिए अली, बेखुदी बेसबब नहीं, अलिफ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो पर्दादारी है कि दर हकीकत उस मूवमेंट के लिए है कि इंगेज किया जाए, कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे के साथ इंगेज हों। और ये खेल जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रहा है, देखिए जब कभी भी सियासतदान दावत देकर जाते हैं और मीडिया को बुलाकर आते हैं, जब मीडिया में प्रमोट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पीछे एक खेल हो चुका होता है और उसके बाद सिर्फ ये जाया जाता है कि हाँ भाई अब ये फेस सेविंग तस्वीर बन चुकी, रंग भरना होता है, खाली रंग भरना होता है। तो ये जो रंग भरने का चक्कर है सारा। और जहाँ तक आप ये बात करते हैं कि भाई PTI का राब्ता नहीं है, भाई साहब असम्बली का सेशन चल रहा है, मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ। हर सेशन से पहले और साथ में, बाद में और उससे पहले, नून वाले हों और PTI वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों या MKM वाले हों, सब साथ बैठे होते हैं सर, सब साथ बैठे होते हैं, बज़ा औक़ात एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हैं। हम नवाला सही है। यहाँ पर अगर आपको फेडरल में आपको नज़र आता है नून PTI के ख़िलाफ़ बोल रही है, PTI नून के ख़िलाफ़ कर रही है और बातचीत नहीं हो रही, जनाब अगले कमरे में दोनों साथ बैठे हुए होते हैं। आपको ये नज़र आता है कि MKM जो है वो शोर मचा रही है कि पानी आ गया, पीपल्स पार्टी कहती है नहीं आया, वो सब एक साथ होते हैं। सर छोड़िए सारी बातों को, ये सिर्फ अब एक दिखावे के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है और वो खेल आपको जल्द सामने नज़र आ जाएगा। जनाब। इस तरह के राब्ते तो ज़ाहिर होने भी चाहिए, खुशाइंद है कि तमाम जो असम्बली में लोग गए हैं, जो आवाम के नुमाइंदे, आपस में तो कम से कम बैठते हैं, साथ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे भाई का बच्चे होते एक के हाथ में छुरी दे दें और एक के हाथ में तलवार दे दें, जो बैठे उसकी झुलिंग वो ढूक दे। वो भाई एक अरे शो ना करे ना, ड्रामेबाजियां करते हैं, सियासत नहीं करे। ये 7 बजे से लेकर 12 बजे तक प्राइम टाइम में बैठकर जो ये शोबदेबाजियां करते हैं, आवाम को बेवकूफ ना बनाए ना। सर आदत से आप मजबूर हैं, वो भी मजबूर है बीच में आवाम को बेवकूफ बनाने से। देखिए आप वो आवाम को बेवकूफ बनाना, तो आवाम बनती क्यों है बेवकूफ भाई? नहीं बने ना। देखिए दुनिया भर में होता है, असेंबली के गोल कमरे में सारे पार्टियां एक साथ बैठे होते हैं, वो अपोजिशन की बेंचों में बैठते हैं, वो उधर बैठते हैं कि अगर वहाँ से कोई इधर आ जाए तो आप बात करें, या इधर से कोई उधर चला जाए तो बात करें। अब वो असेंबली में तो वो खड़े होकर तकरीर करेंगे, वो अपनी जमात की बात करेंगे, अपनी जमात की बात करेंगे। वो खाना आ जाएगा तो साथ खा लेंगे, वो दुश्मनी थोड़ी है भाई, कोई ज़ाती वो नहीं है। अब इतनी तो कम अज़ कम वो रहने दे कि दुनियादारी। आवाम को बेवकूफ ना बनाए ना, हमारी कोई बातचीत नहीं है, हम शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आवाम को बेवकूफ बना रहे ना। शक्ल देखना ये बहुत ज्यादा बड़ा जुमला हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता कि शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो नहीं, आपस में उनसे लगता है आपके तहरीके इंसाफ के बानी ने ये नहीं कहा था कि मैं तो हाथ मिलाना पसंद ना करूं। देखिए कुछ शो में ना, कुछ शोज में मैं इसके खिलाफ हूँ, डुगडुगी बजाता है और वो बंदरों की तरह उनको लड़ाता है और वो लड़ते हैं, ये बहुत गलत है। ये चीज़ भी अब मैच्योर हो गए हैं, उनको मैच्योर हो जाना चाहिए, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। उनसे उनकी पार्टी का मौक़िफ़ लें, इनसे इनकी पार्टी का मौक़िफ़ लें। जहाँ तक ये अच्छी बात है, पूरी दुनिया में एक साथ बैठते हैं अपोजिशन और हुकूमत और बातचीत करते हैं, और यही जमहूरियत की, यही तो जमहूरियत का एक हुस्न है। बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि असेंबली के एक फ्लोर पर एक तरफ जो है वो खड़े होकर ये कहते हैं इसके पास कोकीन पड़ी हुई है, दूसरा कहता है कि इसके पास जो है वो मंशियात पड़ी हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रहा है, ये तो वहीं पर नूरा कशी करते हैं, ड्रामा करते हैं, बाद में जाकर बाहर साथ बैठे हुए होते हैं। अच्छा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है नवाज़ साहब? एक तरफ तो हुकूमत ने रब्ता किया और महमूद खान अचकज़ई ने बैकडोर बातों की तस्दीक कर दी, दूसरी तरफ वज़ीर दिफा जो कह रहे हैं कि जी 9 मई पे माफ़ी के बगैर इनसे बातचीत ना की जाए। तो अब चूँकि वज़ीर दिफा भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं नून लीग के, उनकी बात रखेगी नून लीग कि जी वाकई पहले 9 मई पे माफ़ी मंगाई जाए खान साहब से, उनके लोगों से, उसके बाद फिर बात करने को तैयार हो जाए? देखिए ये बात इससे बहुत आगे चली गई है। ख्वाजा आसिफ बहुत पीछे रह गए हैं। ख्वाजा आसिफ को मेरे ख्याल में अपडेट भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो उसी दिफा है सर, उसी रट पे लगे हुए हैं, उसी रट पे पहले माफ़ी मांगे। उसका जवाब तो बहुत पहले वो दे चुका कि पहले वो माफ़ी मांगे या मुझे दिखाएं सबूत चला के कि भाई ये है, मैं उनको निकालूंगा। अब ये बात तो बहुत पहले हो चुकी है। अब अगर वो उसी बात को पकड़ के बैठे रहेंगे नहीं, अभी बात बहुत आगे जा चुकी है, अभी और चीज़ों पर बात हो रही है। अब वो बात बहुत आगे चली गई है, बात बहुत आगे चली गई है।
अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीच में बोलना, बीच में बोलना। 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि 20 पहले दिन 9 मई सियासत पहले में। 9 मई उसके बाद बात होगी। ये तो बात तय है फार्मूला, तो कौन सी बात आगे गई है अभी तक? जी, इस बात को मेरे ख्याल में 20-25 दिन पहले ये बात सिमट चुकी है। उनके इस बयान के बाद माफ़ी मांगने को उसने बोला मैं मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मगर मुझे दिखाया जाए। उसके बाद तो बात नहीं हुई ना। उसके बाद अब दोबारा वहीं से बात शुरू करने के नहीं, हम XYZ पे पूछे नहीं, ABCD से स्टार्ट करें। उसके बाद का जवाब भी आया था जराए से, वो भी तो कहे ना नहीं जी बात वही देखिए होगी। उसके बाद कहाँ तक चली गई थी बात। उसके बाद ये तक हो रहा था कि फैज़ के साथ हो सकता है इनका भी ट्रायल हो, ये भी हो। अब वो उस ट्रायल की बातें भी पीछे रह गई। अब जो जलसा कैंसिल हुआ है उसके बाद नई डेट दी गई है, उस जलसे पे बात होगी। आप देखिए सर मैं आपको तारीख दे देता हूँ, 4 और 5 सितंबर को देख लीजिएगा क्या होगा। बस चलिए मैं आपको अभी चलो भाई लिख लीजिए 4 और 5 सितंबर को। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा अब कि क्या बोले होगा। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब अब आप बाहर आए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाहर जा रहे हैं, आए क्या हैं, बल्कि लंदन जाने की शायद उनकी खबरें गर्म हैं। आजकल कहा जाता है कि वो बाहर चले जाएंगे लंदन और वहाँ जा रहे हैं बसिलसिलाए सेहत की ख़राबी, और डॉक्टर्स जो कि वहाँ हैं उनको सालाना चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। और ज़ाहिर है जिस तरह के सर्टिफिकेट्स यहाँ से देकर गए थे, 17 या 18 बीमारियाँ हैं उनको, अल्लाह ताला सेहत दे उनको, तो ज़ाहिर है उसके लिए वो जाना चाह रहे हैं। लेकिन जाने से पहले जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो आजकल वो ये है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने अखराजात में कमी करें। सर बात तो उन्होंने बड़ी मुनासिब की है, लेकिन मियाँ साहब ये बात कर रहे हैं कि जी पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो अखराजात में कमी करे, तो ये मतलब ख़ुद से उनको नहीं मालूम कि हमारे अखराजात क्या हैं, बताना पड़ रहा है उनको। देखिए उनके अखराजात की जो झलक मैंने कुछ दिनों पहले दिखाई थी कि उनके लोगों के मुराद क्या हैं। 3-3, 4-4 गाड़ियों को 400 लीटर पेट्रोल मिलता है, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, लाखों रुपए मिलियंस में तनख्वाहें हैं, बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं उनके वज़रा, कहीं होटल में रहना पड़ जाता है 5 स्टार होटल में रहते हैं। उनको ये अखराजात उनको ये नज़र नहीं आते। वफाक की ले लें या सूबाई ले लें, मैं किसी एक की बात नहीं कर, सबकी शाही खर्चे हैं और नौकरशाही के भी इससे भी ज़्यादा शाही खर्चे हैं। तो वो उनको करना जब तक वो करेंगे भाई वही उनको करना है। वो पार्टी के सदर हैं और वज़ीर-ए-आज़म उनका भाई है और वज़ीर आला उनकी बेटी है, और वो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास तो इतला ये है कि भाई नवाज शरीफ का जो है ना टाइम नहीं, सॉरी, उनका काम ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, जो उनका काम था। आप समझ रहे हैं कि इलाज के लिए नहीं बल्कि वो अब जा रहे हैं और वो फिर लंबा ही जाएंगे। बल्कि अगर इलाज के लिए जा रहे हैं तो हम उनको दावत देते हैं सिंध में आके इलाज कराएं। सिंध में बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, दुनिया भर से लोग आके इलाज करा रहे हैं। सिंध में इलाज करा लेते हैं उनका, अगर वो चाहें तो बीमारी बताएं अपनी जो अगर असल आगे बीमारी है। से मियाँ साहब ने रिप्लाई कर दिया कि जी पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी यहाँ नहीं कराते इलाज, तो फिर कौन इलाज के लिए बाहर गया? जरदारी साहब अक्सर बेशतर जाते हैं इलाज के लिए दुबई नहीं जाते? इलाज के लिए वो दुबई जाते हैं, उनकी बेटी है, उनका नवासा इसलिए है, जाते। उससे मिलने भी नहीं जाए। अच्छा बहरहाल इलाज उनका यही होता है और ज़्यादा दिन में एडमिट होते हैं जब उनकी तबीयत ख़राब होती है। बहरहाल ये मसला नहीं है, मसला ये है नवाज शरीफ का काम जो था। शायद वाला देखिए वो चीफ जस्टिस के पास इतना टाइम था, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, पुरानी बातें नहीं करा करें मुझसे, मैं आपको बोलता हूँ बहुत तल्ख है। वो सारे काम छोड़ के आके शहद ढूंढ रहा है, शराब ढूंढ रहा है एक कमरे में, तो कितना पर्सनल हो गया ना यार, उस बातों से निकले। देखिए नवाज शरीफ का जो मेरे पास जो न्यूज़ है मैं वो शेयर कर लेता हूँ आपके लोगों के साथ। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जा रहे हैं और लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं और नाराज़ होकर जा रहे हैं पार्टी से, अपनी पार्टी से, अपने भाई और से, मेरे ख्याल में बेटी से। जाते जाते आप एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुनेंगे, हो सकता है या तो वहाँ जाके वो या यहाँ पे सारा छोड़ वो देंगे, सदारत से इस्तीफा दे देंगे। उसकी वजह होगी खराबी सेहत। खराबी सेहत करने इख्तलाफात अब खुल के सामने आई गए हैं इन लोगों के आपस में बहुत सारे, तो वो आइंदा दिनों में आ जाएंगे। तो फिर और आप ये भी वज़ीर देखिएगा, आला- मेरी एक और पेशिंग गोई जो आप मैं बार बार आपको रिमाइंड करता रहता हूँ और एक एक करके पूरी हो रही है कि नून लीग में सिर्फ नून के खानदान वाले रह जाएंगे, मतलब नवाज शरीफ खानदान वाले रह जाएंगे। जो बाहर के लोग हैं एक सब एक छोड़ करके देंगे जा आप रहे कह हैं। रहे हैं। एहसन इकबाल भी जिस तरह खिलाफत चल रहे हैं उनके। रवानगी है उनकी भी कुछ तो नहीं सिर्फ ऐसे इकबाल, इतनी बड़ी पार्टी है, आप तो पूरी पार्टी को कह रहे हैं कि सब चले जाएं। कहाँ, कौन सी पार्टी में शामिल होंगे सब? देखिए खाकान अब्बासी कहाँ गए, मुफ्ता इस्माइल कहाँ गए, और आपको नाम बताऊं, मतलब कई लोग जा चुके हैं, बाकी कुछ बैग बन के रहेंगे नून लीग वाले। नहीं, नून लीग से निकलने के बाद फिर देख लें फिर क्या वो एक पार्टी हैसियत- बन चुकी है जिधर वो पार्टी तो सबके बनी है, एक लेकिन करके जिस जा तरह रहे हैं। टांगा पार्टी फिलहाल तो वो ये उनके ख्याल में टांगे की ये सवारी उनके पूरी ख्याल नहीं में खाली हुकूमत की कुर्सी ले ली जाए, ये तो टांगा पार्टी भी नहीं है जो उनकी रहेगी, वो खानदानी पार्टी रह जाएगी। नून लीग फारिग। ज़ोहरी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल फारिग, क्योंकि मियाँ साहब भी जा रहे हैं, इस्तीफ़ा भी वो दे देंगे, उसके बाद सिर्फ ख़ानदान के चंद अफराद रह जाएंगे,
پوری نون لیگ فارغ ہے، وہ پھر بھی اس پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ شاید خاقان عباسی کی پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسل عباس صاحب پارٹی بنا رہے ہیں اس میں شامل ہو جائیں۔ نوید بھائی اتنی معصومیت سے اب مزہ آئے گا۔ پچھلے سال کہا کرتے تھے نواز شریف تو نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا؟ وہ نہیں آئے گا، اس کے بعد بھی وہ نہیں جملہ آئے بولتا گا، تھا، نہیں آئے گا نا؟ وہ نہیں بولا آپ نے۔ چلو بھائی وہ آ گئے، صحیح ہے۔ اصل میں ہم چشمہ دوسرا بدل دیتے نا۔ دیکھیں نواز شریف کا یا مسلم لیگ نون کا، ان کو سیاست یہیں کرنی ہے، ہر صورت میں سیاست یہیں کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مریم نواز جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور مریم نواز کی سیاست ہے، نواز شریف کچھ وقت کے لیے تو پنجاب سے جا سکتے ہیں، پاکستان سے سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ مستقل صدارت نہیں طور چھوڑیں پر نہ صدارت چھوڑیں گے، صحیح، اور نہ ہی وہ یہاں سے مستقل طور پر جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے لیے سیاسی قربانی مریم نواز نے ایز اے بیٹی جتنی دی ہے، تو یہ اتنی قربانی ان کے بیٹوں کی شاید وہ ان کی نظر میں نہ ہو۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، بیٹوں کی قربانی ہے نہیں نہ ہو نا، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، نہ ہو مطلب ہے، بیٹے تو میری میاں بات سے پکڑے ہیں، وہ سننا، آتے تک نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا آپ سے، نہ ہو نا، مطلب میں تو نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے لیے، صحیح، میں یہ بات آپ سے بہت، جو اسلام آباد سے لے کر لاہور بھی میں رہا، سب جگہ ایک بات بہت کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی صورت میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات آپ چاہے کچھ بھی کر لیجیے، پھر تو یہ ہوا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے جائیں گے بھی تو واپس آ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ بات عام ہے، سے یہ بات دیکھیے بات کو سمجھیں، ہم جذباتیات پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ہسٹری ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں، صحیح ہے۔ ہم لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں آصف الداری صاحب کی سیاست سے، لاکھ اعتراض کرتا ہوں میں پیپلز پارٹی کی سیاست سے، لیکن یہ بات طے ہے کہ آصف علی داری صاحب آصفہ صاحبہ کو یا بلاول کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، صحیح ہے، نہیں چھوڑ سکتے، غالب ہے۔ مطلب یہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے نا یار، کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سملرلی یہ ممکن نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب تنہا چھوڑ دیں، اکیلا چھوڑ کر وہاں سے نہیں تو جائیں گے۔ اکیلا کیوں، چچا ہیں ان کے وزیر اعظم۔ دیکھیے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، دیکھیے یہ ایک فرق سر یہ سر دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے سیاست میں، جس طرح سر کے ممکن چچا ہیں نہیں ان کے، ہے، جس طرح ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کہنے بھی وزیر اعظم بنے شہباز شریف ہم صاحب۔ زمینی حقائق سے الگ بات کر لیں، ہم دیکھیں بھائی پہلے وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، کچھ دنوں بعد وہ وہاں جا کے بولیں گے مجھے کیوں بلایا، وہ مجھے ایک کیوں بلایا۔ political agenda ہے نا، میرے بھائی ان کو وزیر اعظم دیکھ رہے تھے، میں نے کہا تھا نہیں وزیر اعظم نہیں بنے گا، اس کی سیاست ختم ہو گئی۔ پچھلے 4 سے 6 مہینے سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے گھر میں، 4-6 مہینے بعد وہ آئے، لوگ پریشان تھے ان میں حمایت صدر پارٹی مسلم لیگ نون پر بیٹی نے 4-6 مہینے جیل کاٹ لی اس کو، اس کے بدلے میں وزیر اعلیٰ بنا دیا، خواجہ آصف ہو گیا، جوہری صاحب ہو گئے، رانا صاحب ہو گیا، کتنے سالوں سبوں نے جیل کاٹی، ان کو کوئی اور وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ملا سوائے اپنی بیٹی کے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا نا، میں وہ دیکھیں وہ ایک وراثت ان کی کی سیاست میں یہ کہتا ہوں ان کی سیاست گھومتی ہی عین کے بیچ میں ہے اور آخر میں عین ہی رہ جائے گا۔ یہ وراثت کی سیاست کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک مریم نواز صاحبہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے۔ میں اسی سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا نہیں کہ جناب تو مستقبل کے حوالے سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومتیں اگر ختم ہوتی ہیں تو پھر یہ سب بوریا بستر سمیٹ کے مریم صاحب بھی چلی جائیں گی، میاں صاحب پھر تو یہ بالکل نہیں بات آئیں کی گے۔ بات ہے کہ یہ بات کا معاملہ ہے نا، میں ابھی کی آپ نے بات کہی ہے، آگے کے حالات کیا ہوتے ہیں اچھا، یہ کہہ ہمیں رہے کیا ہیں معلوم تھا کہ بھائی عمران خان صاحب تحریک انصاف کے بانی، جتنی محبت، جتنی چاہت اور جتنے سلوک کے ساتھ ان کے لیے جو کام کیے جا رہے تھے، بعد میں وہ کام نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تو سیاست ہے، اس میں کل کون کس کے ساتھ ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا یہ خبر کے مطابق کہا ہی جا رہا ہے کہ جی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مستقبل بتائیے آپ عمران خان کا، وہ باہر کب تک آ سکتے ہیں۔ تو اب ایک خبر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے، جو بڑے معروف صحافی بھی ہیں، بڑے اندر کی خبریں لے کر کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سوال ہی غلط ہے، خان صاحب جب چاہے، ان کا جب دل چاہے گا وہ باہر آ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے اٹک میں رہتے ہوئے یا ڈیالہ رہتے ہوئے بہت سارے اور لوگوں نے جب یہ چاہا ہے تو اندرون خانہ سیٹنگ کی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ پھر پاکستان میں نہیں، پھر وہ کوئی جدہ چلا جاتا ہے، کوئی لندن چلا جاتا ہے۔ تو عمران خان کے اوپر ہے، وہ آج یہ کہہ دیں کہ جی مجھے لندن بھیج دیں تو دوسری کوئی آواز نہیں آئے گی اور کہا جائے گا کہ جناب یہ جہاز ہے چلے جائیے۔ سر یہ لگتا ہے آپ کو اتنا یہ آسان ہے، اور یہ اس طرح کی ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے ڈیل؟ دیکھیں 2 طرفہ ٹریفک ہوتی ہے، اگر 2 طرفہ ٹریفک ہوئی، سگنل دونوں کے مل گئے، جو رابطے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جیسے کہ عمران خان نے اگر حامی بڑھ لی مجھے جانا ہے،
तो फिर हफ्तों में ही वो यहाँ नहीं होंगे, हफ्तों में ही हो जाएगा, 10 हज़ार टाइम नहीं लगेगा, हफ्तों का टाइम। सही कह रहे कैसे वैसे सब खत्म। हो। लेकिन अगर वो मान गए तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, उनके फॉलोअर जो भी है। तो और मियां साहब जितना की इमरान खत्म खान कहाँ हुई को, थी जितना मानने इमरान से? खान को हमने सियासत में देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो मुल्क छोड़ के जाएगा। वो बड़े बड़े लोग कहते थे जेल ये करेगी वो करेगी, 1 हफ्ता ठहर जाए, 3 हफ्ते 3 महीने, ये जेल से जो है ना बाहर नहीं जाएगा ये, मुझे नहीं, जहाँ तक, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जितना उस आदमी को रीड किया है मुझे नहीं लगता वो जाए। तो आप तो ये तारीफ कर रहे हैं उसकी कि वो कमिटमेंट का पक्का आदमी है, ये क्या बात हुई? तारीफ नहीं कर रहा, वो जिस तरीके से अड़ने वाला आदमी है, मैं दूसरे पास बोलूंगा तो वो बुरा लगेगा, लेकिन बानी पीटीआई में जो चीज़ है जिस पे अड़ जाते हैं वो अड़ जाते हैं, वो अभी तक अड़े हुए किसी चीज़ों पे। तो वो अड़े हुए, अगर वो ये समझ रहे होते कि ये नवाज शरीफ हैं जी, इनसे बातचीत की जाएगी, कोई अड़े हुए हैं, आप समझते इतने हैं साल कि के लिए जी चले वो जाएंगे, वो 40-50 डील करने वाला आदमी नहीं है वो, ये कह रहे हैं आप? वो पॉलिटिकल डील करेगा, बाहर जाने की डील नहीं करेगा, मुल्क से बाहर नहीं। जिस दिन वो मुल्क से बाहर गया खत्म, फिनिश। लेकिन और जाना होता बहुत पहले जा चुका होता उसको, ये बात सही है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो जिस दिन जाना चाहे वो जा सकता था, लेकिन जब अब देर हो गई, अब वो जब जो टाइम था गुजर गया, अब तो वो डील करेगा, पॉलिटिकल डील करेगा, जो भी करेगा। और देख लेते हैं उसमें कितना टाइम। मुझे मेरी अपनी राय ये है कि वो मुल्क से बाहर उस डील को देखते हुए कि जी इसकी डील ना हो जाए खान साहब की, या कुछ खबरें आ गई मियाँ साहब को इसलिए जा रहे हैं बाहर, मियाँ साहब ये भी है पॉसिबल हो सकता है? मियाँ साहब का जो बाहर जाने की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, उससे इमरान खान का ताल्लुक कोई, नहीं। इमरान खान को ताल्लुक नहीं। इमरान खान के बारे में तमाम उनकी ख्वाहिशात, उनकी फरमाइशी प्रोग्राम, पूरी लिस्ट जो है ना, जो उनकी लिस्ट टू डू लिस्ट, एक पूरी की पूरी की गई जिस दिन से वो आए थे। जब वो आए थे मुझे क्यों बुलाया कि पूरी की पूरी लिस्ट उनकी तैयार रेडी हो गई, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनका जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरे मंजूरी साहब, ऐसा लग रहा है कि नवेद भाई हाँ, मुझे अभी अब फतवा देंगे कि मैं पीटीआई का हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, उस बात है, चले दें आप। नवेद भाई जो है कि उनके जो रहनुमा हैं उनसे ज़्यादा कोई उसूल पसंद आदमी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब उनके जो रहनुमा हैं उनसे जैसा आइडियल कोई नहीं है, वो अपनी बात पर डटे रहते हैं। वो यहाँ जरा सा फुल स्टॉप लगवाएंगे या मैं बीच में अभी हमने तो पूरी तकरीर सुनी ना, हमने पूरी तकरीर सुनी, हमने कुछ कहा, हमने कुछ कहा। इन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी को जो बहादुरी का अवार्ड दिया, हमने कुछ कहा। इन्होंने जो इनको बड़ा साबित कदम करार दिया, हमने कुछ कहा। सही है भाई, आपने एक बार गलत की, मैं उसकी तौसीह कर रहा हूँ। मेरा रहनुमा वो नहीं, मेरा लीडर था, और वो ऐसा ही था जैसा इन्होंने बयान किया। वो था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि मेरा लीडर था, जिसको मैं पसंद करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। वो जेल से जा सकता था, नहीं किया, उसको हर तरह की इसी तरह आप कह रहे हैं खान साहब को? बिल्कुल नहीं भाई, वो यही कह रहे हैं। वो जो तारीफें आप कर रहे हैं, आप जो तारीफें कर रहे हैं, मैंने तारीफ नहीं की, आपने कहा आसमान का बहादुर, इतना ये इतनी डील नहीं कर सकता। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा क्रेडिट, यानी आपने अपने लीडर से बड़ा क्रेडिट दे दिया उसको। ये मतलब आप देखिए अपने लीडर से बड़ा क्रेडिट। अब आप एक मिनट रुक गए ना, नहीं, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। नहीं, अब आप बोल लीजिएगा, आप बहुत कुछ बोल लीजिएगा जो आपने मेरे पे वो बुछाड़ की है, उसका मेरा हक है। नहीं, मैंने नहीं कहा। मिलाया है, या आप कह रहे हैं बड़ा लीडर बता दिया? इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा बड़ा बताया, इन्होंने कहा कि वो डटा हुआ। यार थोड़ी देर अगर आप खामोश हो जाए तो अच्छा है, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। यार ये आपने बोला, मैंने कुछ कहा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने पूरी तकरीर की, उनके लिए मैंने कुछ कहा। अब थोड़ी देर प्लीज, चलिए बोलिए। इन्होंने जो मुझ पे थोपने की कोशिश की ना, बड़ा जोर जोर से बोल के, ऐसा कुछ नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान के दिमाग में जमीन और आसमान का फर्क है। उसके पास कोई विजन ही नहीं है, उसके पास वो उससे बड़ा विजनरी लीडर पैदा नहीं हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो से। सिर्फ एक बात जो मैंने की, जिसको उन्होंने पूरा का पूरा थोप दिया जोर जोर से बोल के, कि मैंने कहा कि वो बाहर जाता नजर नहीं आता, जितने मैंने स्टडी की कि वो बाहर जाता नजर नहीं आता, मगर इससे जुल्फिकार अली भुट्टो से मैच उसका हो सकता ही नहीं है। 100 में 2 नंबर भी नहीं मिल सकता इमरान खान को। वो कोशिश करता है कि उसके फुट स्टेप पे चले, उसने अपनी बहुत सारी तकरीरों में उसको अपना वो बोला, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं है भुट्टो से। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो डट के खड़ा हुआ कह रहे हैं? आप डट के खड़े बोला ना इन्होंने
मैंने जो बात बोली, मेरे बात अपने मुंह से नहीं, मेरे मुंह से सुने आप, अपने अल्फाज मेरे मुंह। मैंने बोला जितना मैंने इसको स्टडी किया है वो डील करके बाहर जाने वाला नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डट के खड़ा हुआ है। इसका मतलब है इन्होंने कहा वड़ा हुआ रहता है। अब इसका मतलब आप जो भी लगाते रहे, इसका मतलब ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया। जो मेरे अल्फाज है उसको आप तोड़ मरोड़ के साबित किया। मैंने कोई साबित नहीं किया, साबित अब आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किया, आपने कहा कि भाई वो अड़ा हुआ है, वो कोई डील नहीं करेगा, वो बहुत मजबूत आदमी है। ये सारी बातें मैंने की। आपने कही, एक बात मैंने ये की कि वो बड़ा मजबूत आदमी है। मैंने कहा आप कहने का मकसद क्या था? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्या मकसद था? इसका अच्छा आप देखिए, अच्छा और हमें भी बोलने दीजिए ना। नहीं, उसमें और आपके लीडर में जो फर्क है, आपके लीडर में, आपके लीडर नवाज शरीफ में और इमरान खान में जो फर्क है, वो 40 संदूक लेके चले गए, ये नहीं जा रहा। इनका लीडर, हमने इनका लीडर नवाज शरीफ को लीडर, हमारी तो कभी आपने, हमारी तो इल्जाम ही कुछ और है, छोड़ दिया उसको। अच्छा बात ये कि देखिए भाई, इन्होंने जिस तरह साबित किया कि वो अड़ा हुआ है, डील नहीं करता, सही है, वो साबित कदम रहता है। ये अल्फाज जो आप बात कर रही हैं, इनमें से एक अल्फाज मैंने नहीं कहा, एक अल्फाज मैंने नहीं कहा। अड़े हुए किससे कहा? अड़ा हुआ नहीं कहा, वो डील नहीं करता, ये किससे कहा? 3 दफा बोल चुका हूं, जिन्होंने मैंने जितना स्टडी किया जितना स्टडी किया है, मुझे ये डील करके बाहर जाने वाला नहीं लगता। दैट्स इट, नॉट आगे फुल स्टॉप के ना पीछे। जेल से बाहर जाने वाला नहीं लगता या मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर डील करके जाने वाला नहीं लगता। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि वो बड़ा ही अड़ जाता है? नहीं, मैंने नहीं कहा, ऐसा कुछ अरे नहीं कहा है इन्होंने भाई, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए, आपने कहा है। 2 मिनट के लिए मुझे लग रहा है वो वायरल होगा, आपने कहा है, जो कुछ कहा गया है इनके बारे में। अच्छा, ये अब आपको क्या लग रहा है कि इन तमाम बातों को इनसे पूछने जाएगा कि नहीं, पहले पूछना नहीं, वो इनसे भी जवाब लेना, मेरे जवाब पे ऑप्शन है या नहीं है? ये किसके? डील का नहीं है। मैं बार बार आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, ये राब्ते की खबरें जो आती हैं, क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, निचली सतह पे सही, जिनकी तारीफ कर रहे थे डील नहीं करेगा, सही है, क्या वो डील कर उसको हीरो बनाकर महात्मा नहीं बनाया गया था? क्या वो डील कर ही यहाँ पर उन्हीं के जोर बाजू पर हम जैसे कमजोरों पर जेल में नहीं डाल देता था? क्या वो हम जैसे कमजोरों को एक एक फोन करके धमकियां नहीं दिलाता था? किससे दिलाता था? वो जो डील नहीं करता था उसी ने तो सारी डीलें कर करके गई, और जब उसको हटाया जाने वाला था वो तो कदमों में गिरा हुआ था। कितना बड़ा एक्सटेंशन चाहिए तुम्हें, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसमें साथ दिया नून लीग ने भी, पार्टी दोनों। अरे वो छोड़िए, वो अभी तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, जो अड़ा रहता है, सही है, जो अरे भाई वो कहे हैं आपने। अरे मैंने जो बात की है 3 दफा की है, 2 दफा उन्होंने रिपीट कर दी है कि मुझे वो डील करके मुल्क से बाहर जाने वाला नहीं लगता। जो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो जितना मैंने स्टडी किया है, मैं उसको डील की तारीख बता रहा हूँ आपको कि उसने कब की है। ओ भाई, ऐसी तो डील बहुत करेगा वो, ऐसी तो U-turn 50 लेगा वो, तो ले चुका है, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ मुल्क से बाहर जाने वाली जो बात इन्होंने की, मुझे बस सिर्फ वो नहीं लगता। जब ऑफर हो, क्यों नहीं लग रहा आपको? क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, फैज हमीद पकड़ा गया है, उसके बहुत सारे लोग उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं, गवर्नमेंट KPK में चल नहीं रही उनसे, आपको नहीं लगता कि जान छुड़ाना चाहेंगे वो तो फौरन? यार फिर वही बात हो जाएगी, मैं कुछ बोलूंगा तो ये फतवे भी डालेंगे और मेरे अल्फाज को तोड़ मोड़ के पेश कर देंगे। लेकिन हर आदमी का एक करैक्टर होता है, करैक्टर वाला आदमी, हर सियासतदान का एक करैक्टर होता है, ठीक है ना? हर सियासतदान का पता लगता है। नवाज शरीफ का फटाफट पता लगेगा, जहाँ मुश्किल आई भाग जाएगा, ठीक है ना? जहाँ पता लगेगा कुछ चांस से आ जाएगा, ठीक है? आसिफ जरदारी का जेल काट लेगा लंबी, वो डील नहीं करेगा, डील करके नहीं, डील करेगा मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। यही इमरान खान का भी मुझे लगता है, जिस किस्म का वो अड़ियल टाइप आदमी है, ये जुमला मुनासिब नहीं है, दोबारा मुनासिब अच्छा जुमला नहीं होता, ये बुरा जुमला होता है सियासत में, इसको आप अच्छा ही लेते हैं। अच्छा, क्योंकि और बहुत सारे लीडर आपको गम होगा जो मुल्क से 25-26 साल बाहर बैठ के शहर को चलाते रहे, आपको उस चीज का भी गम होगा। लेकिन ये अब मुल्क से बाहर रह के सियासत का टाइम खत्म, अब सियासत करनी है इधर इस शहर में, इस मुल्क में बैठ के सियासत करनी पड़ेगी। ये टाइम खत्म हो गया कि मुल्क से बाहर जाके कोई सियासत चलेगा, ये टाइम खत्म। यहाँ है तो सियासत है, यहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अड़ियल है, जा नहीं सकता, लेकिन अब सियासत करनी है तो जाहिर है फिर मुल्क में रहना भी होगा। मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे, वो दौर गए, जिस तरह बता रहे हैं कि आप बाहर बैठ के चला लिया करते थे, अब बड़ा मुश्किल है तमाम बातों में। बहरहाल अड़ियल ही ना, मतलब अड़ियल है, अड़ियल अपनी बात पे अड़ा हुआ ही कहते हैं ना, कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, अड़ा हुआ अपनी बात पे अड़ा हुआ, उसी से निकला है ना अड़ियल। सही है, आप उसकी और तशरीह करें, और आप बता रहे हैं, आपने तारीफ की है लीडर की, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह का, सही है, उस बात में चलो वो भी नहीं गया था जेल से बाहर, ये भी नहीं जाएगा। आपने तो
साथ में अब उसको कुछ भी तशबीह बनाते ना- रहे बनाते रहे, आपने अब बोलते तशबीह रहे, की दोनों की, बोलते रहे। आपने ही दोनों के साथ तशबीह की तशरीह है। आप कर रहे हैं। चलिए तशबीह आगे दी। चलिए। अच्छा, ये इन हालात में आप दोनों से ब्रेक पे आने से पहले सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये हालात आपके सामने, कोई डील करता है नहीं करता, किसी ऑफ़र होती है नहीं होती, मियाँ साहब बाहर जाते हैं नहीं जाते, इन हालात में क्या मुल्क आगे बढ़ता आपको नज़र आ रहा है या नहीं? पहले आप जवाब देना है बताइए। ब्रेक के बाद? आपकी बात। देखिए इंशाल्लाह ताला ये मुल्क पाकिस्तान तो आगे जाने के लिए बनेगा, जाएगा। और ये जितने यही लोग लेकर जाएंगे। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग लेके कौन जाएं। लोग जरा डिफाइन जो करेंगे आप? इस वक्त अभी- सियासतदान इस मौजूद वक्त हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, खान साहब, जितने बड़े लीडर, फजल रहमान साहब, जाहिर है गो के सबकी उम्र ये 60 प्लस है। आप इन्हीं की बात 70 प्लस है। जी, जी। 70 70 प्लस कह है। लीजिए। हाँ, इनकी सियासत ये- का ये- आखिरी इन्हीं अशरा खेल चल रहा चुके है। इन सबकी सियासत का आखिरी अशरा चल रहा है, ये नहीं है, मगर पाकिस्तान का आखिरी अशरा नहीं चल रहा। नहीं, मैं इसलिए पाकिस्तान पूछा तो कि ये लोग हमेशा आगे, रहने के लिए उसका बने। मतलब है एक आध दो हुकूमतें मजीद ये लोग रहेंगे, उसके बाद फिर नौजवान सामने आएंगे, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। क्या पता अगले इलेक्शन में चेंज आने नजर आ जाए, कोई नौजवान लीडर उभर के मुल्क का वज़ीर बन जाए, हो सकता है। कोई नई पार्टी का? नहीं, इन्हीं पार्टी में से और बड़े अच्छे लीडर हैं, हो सकता है उसमें से कोई बन जाए। लेकिन पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस जैसे कई लोग पता नहीं कब से खा रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को खत्म करने की पाकिस्तान हमेशा कोशिश रहने के लिए करते बना है, रहे। आगे बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं होगा, अनिल मंजूरी पाकिस्तान साहब। बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। ये जो इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, सब लोग परेशान हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, डील होगी नहीं होगी, कौन बाहर जाएगा नहीं जाएगा, इन हालात में क्या लगता है आपको कुछ ऐसा मौजूदा हो जाएगा, पाकिस्तान में तरक्की शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, नौजवानों को रोज़गार भी मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों के मसाइल भी कम होंगे? देखिए अली, जो आप सारी बातें कर रहे हैं कि ये सियासतदानों के आपस के झगड़े, सियासतदान हुकूमत चला रहे हैं, बहरहाल जो लोग हुकूमत चला रहे हैं वो ये नहीं है, और वो जो चला रहे हैं वो मुस्तकिल उसी तरीके से चला रहे हैं। तो जहाँ तक आप ये उन्वान के जनाब, ये झगड़े, ये मामलात, ये तमाम चीज़ें वो एक तरफ है, लेकिन आप ये देखिए कि आप गुज़िश्ता 5, 6, 7, 8, 10 सालों की पॉलिसीज़ को अगर आप उठा के देखिए तो उसमें आपको बहुत सिमिलरिटी नज़र आती है। अगर हम उसी सिमिलरिटी के साथ गए जो लोग भी चला रहे हैं तो आगे जाकर ज़ाहिर नुकसान होगा, लेकिन उससे तब्दील करने की ज़रूरत है। और उस तब्दीली में ख़ास तौर पर यहाँ की अशराफिया को टैक्स नेट मिलाने की ज़रूरत है, यहाँ की अशराफिया को काबू करने की ज़रूरत है, यहाँ के उस आला तबके को कि जिस पर टैक्स नहीं लगता है और जो हमेशा बचा हुआ रहता है उस पर टैक्स की गिरफ्त मजबूत करने की ज़रूरत है। बिजली की कीमतों के हवाले से जो मुआहदे हुए हैं उन्हें देखने की ज़रूरत है कि जनाब ये हो क्या रहा है, और जब तक ये मामला सही नहीं होंगे, और जो लोग ये कर रहे हैं, मैं तो उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, हुकूमत से नहीं जो नज़र आती है, उस हुकूमत से कि जो नज़र नहीं आती है, कि जनाब इन मसाइल को हल करें। इन मसाइल को हल करें। जी, छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब कि ज़ाहिर मुल्क, कोई भी मुल्क हो, आइन और कानून के तहत ही आगे बढ़ता है, तो आइन और कानून की जब तक बालादस्ती नहीं होगी तो फिर इस तरह के हालात तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है, जिस तरह की बात कर रहे हैं मेरे दोनों मौजूद मेहमान, कि जनाब पाकिस्तान तो ज़ाहिर आगे बढ़ेगा, ये सियासतदान हों या ना हो, वैसे भी 70 प्लस हैं, अपनी इनिंग खेल चुके नौजवान जो सामने आए पढ़े लिखे, वो बेहतरी की बात करें, आपस में साथ जुड़कर मिलकर एक साथ बैठ कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। छोटा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और बात करेंगे हम जो तूफ़ान जो कराची से कितना किलोमीटर दूर रह गया है या चला गया है, तूफ़ान असना की बात कर रहा हूँ। ब्रेक के बाद उस पर हम बात करेंगे, कहीं में जाइएगा, देखते रहिए एश नाउ। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी समुद्री तूफ़ान असना कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी से दूर जाना शुरू हो गया है और अब इसका फासला 300 किलोमीटर के लगभग हो चुका। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ान बहर अरब के शुमाल मशरक़ में मौजूद है और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफ़ान का रुख जो है वो अमान की जानिब हो चुका। और अब जबकि तूफ़ान का किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं है और समंदर में ही कमज़ोर होकर ख़त्म होने का भी इम्कान है, लेकिन इसका ख़तरा टलते ही मुल्क में एक और मजबूत मानसून सिस्टम के दाखिले का खदशा भी पैदा हो गया है। और मौसमियाती सैटेलाइट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत अख्तियार कर रहा है और ये शिद्दत अख्तियार करने के बाद डिप्रेशन बन गया है। इस डिप्रेशन के कोर्स को देखा जाए तो सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा और आइंदा 3 से 4 रोज़ में मशरकी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर इसके असरात इस वक्त पेशगोई की जा सकती है क्योंकि अपनी समत भी तब्दील कर सकता है। सर, एक तो बहुत अच्छा हुआ, कराची वालों की दुआएं रंग लाईं और ज़ाहिर यहाँ बहुत सारे औलिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं, उनसे भी लोग
والہانہ عقیدت رکھتے ہیں اور جب اسی طرح کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی دیکھتے ہیں. تو کم از کم یہ جو خطرہ تھا بہت کراچی والے پریشان تھے کہ خدا نخواستہ طوفان آ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ جو حالات ہیں میئر صاحب اور جو کراچی کے ایک ہی بارش میں جو حالات ہوئے اس کے بعد تو مزید پریشانی کا اضافہ ہو گیا تھا لوگوں میں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اللہ کا بڑا احسان ہے کراچی والوں کے لیے. یہ ہمیشہ کی طرح ایک بہت بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ جو بھی طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وہ جب 100-120 کلومیٹر دور رہ جاتا ہے، جس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے، ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ورسٹ ہوتا ہے جب وہ 50 کے دائرے میں آ جائے. وہ صورتحال ہم اب تک نہیں دیکھ پائے الحمدللہ. ہمیشہ وہ طوفان 100 کے قریب جب آتا ہے تو اس کا رخ اچانک کچھ اللہ کی طاقت اس کو موڑ دیتی ہے، کبھی عمان کی طرف، کبھی گجرات کی طرف، کبھی احمد آباد کی طرف. ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے آئے ہیں. اور اس بار بھی کچھ اس بار کہا جا رہا تھا کہ یہ دوسری طرف سے آیا اور بہت امکانات ہے کہ یہ کراچی کے ساحل سے خدا نہ خواستہ نہ ٹکرا جائے. لیکن یہ ہوا کہ ویدر بڑا اچھا ہو گیا، بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش، کوئی بہت تیز بارش نہیں ہوئی. ہاں ہوائیں چلیں جس سے کہ نقصان ہوا، کئی درخت اڑ گئے، چیزیں ہوئیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح سن رہے تھے کہ سائن بورڈ اور سولر جتنے لگے ہوئے اڑ جائیں گے. ایسا کوئی نقصان ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. یہ بہت اچھی بات ہے، گڈ لک ہے کراچی والوں کو، طوفان سے بچا لیا. اور طوفان اب چلا گیا، طوفان کا خطرہ ٹل گیا یہاں سے الحمدللہ. اب نیا سسٹم جو داخل ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے 5 یا 6 تاریخ تک، اس کی بھی ہے، اور خدا نخواستہ ظاہر ہے دوبارہ بھی اس طرح کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن اب طوفان اسنا کے بارے میں جس طرح بتایا آپ کو کہ ناظرین اس کا تو خطرہ ٹل چکا کہ 300 کلومیٹر پیچھے چلا گیا. کیا کہیں گے سر، شہر قائد میں سمندری طوفان کے اثرات دکھائی دینے لگے تھے لیکن کرم کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے، اور اب تو نہیں ہے، لیکن بارش سے جو شہر کی مجموعی صورتحال ہے، آپ بھی گزر کر آئے ہیں، اسلام آباد بھی دیکھ کر آئے ہیں، اس کے بعد پھر کراچی دیکھا آپ نے، فرق نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے مطلب ایک سابقہ دارالحکومت اور ایک موجودہ دارالحکومت دونوں کو دیکھا ہوا ہے آپ نے. اس برسات کے بعد شاید ہی کراچی کی کوئی ایسی سڑک ہو جو موجود ہو، شاید ہی. کتنی اچھی بولنگ کراتے ہیں آپ، کیسے ان کو حلوہ بولنگ، کیسے اچھے اچھے سوالات دیتے ہیں. کیا بات ہے. چلے جناب، کچھ بولنا شروع کرتا ہوں. نہیں میں تعریف کر رہا ہوں آپ کے بھائی سلیم اللہ صاحب کی تعریف کر رہا ہوں. کلیم اللہ کو موقع دیا. آگے جیسے ہی بولنا شروع کرتا طوفان ہوں، اسنا کی بات میں جیسے ہی میں بولنا شروع کرتا ہوں نا فوراً نوید بھائی جو ہے وہ فوراً کچھ کہہ دیتا ہے کہ جناب نہیں اس موضوع پہ گفتگو نہ نہیں اسی پہ کیجیے، اس موضوع پہ صاحب کا دارالحکومت اور موجودہ دارالحکومت پہ گفتگو کیجیے. بڑی کیا بات ہے. اس دارالحکومت میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، وہاں کام کیا نہیں کیا، میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں. یہاں تو مسلسل ایک ہی گورنمنٹ ہے نا، ایک ہی مسلسل ان کو تو موقع مل گیا ایک پارٹی کو. بہت اچھا سر، میں ہمتن خوش ہوں. اسٹارٹ ہو جائے. دیکھیے اسلام آباد میں تو ایک حکومت نہیں رہی نا. ایک اور پارٹی کا ذکر کیا نہیں، بس نہیں کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کریں گے نا، وہ تو بال کرائیں گے نا، چھکا تو آپ نے مارنا ہے. نہیں اس بال پر آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں نا، آؤٹ ہو سکتے ہیں. اگر واقعی یہاں کچھ بہتری نظر آئی تو بتا دینا تاکہ لوگ بھی تو خوش ہوں. لیکن آپ نے تو پہلی جملے میں کہ جی کوئی سڑک نہیں دیکھی آپ نے محفوظ ہو، یہ بات عجیب سی بات کر دی آپ نے. اس پارٹی کا ذکر کیا کرنا تھا تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی نوید بھائی نے کہیں ذکر پارٹی کا آپ نے نام لیا نا، آپ نے پارٹی کا نام لیا. شارع فیصل پر تو ظاہر پانی کا نام نہیں لیا. تھا، شارع فیصل پہ پانی نہیں تھا. باقی جو آپ بتا رہے ہیں وہ بتائیے. اچھا دیکھیے، اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو ایک تو یہ طوفان آنا تھا، صحیح ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم جس جگہ پر ہیں، ہمارا جو محل وقوع ہے وہ خاص طور پر ایسا ہے کہ یہاں پر خلیج فارس اور خلیج بنگال کی آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے یہاں ہمیشہ طوفان ہمارا ٹچ جاتا ہے. اگر سائنٹیفکلی اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ ہمیشہ اس طرف رخ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے شہر میں اس وقت یہ ہلکا سا طوفان یا ہلکا طوفان کے اثرات، اس سے شہر کی حالات اتنے خراب ہو چکے کہ یہاں پر اس وقت آپ کو کوئی بھی سڑک درست نظر نہیں آتی، جگہ جگہ آپ کو درخت گرے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اتنے سے کیسے اس کا اثر آیا ہے، اس کے بعد یہ صورتحال ہے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم ان 76-77 سالوں میں اس سے پہلے کا اسٹرکچر اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، جو انگریزوں کے زمانے کا اسٹرکچر موجود تھا وہ کس حد تک قائم موجود ہے. اور ان 76 سالوں میں جو ہم نے یہاں پر اسٹرکچر بنایا، کانکریٹ کا ہم نے پورا شہر قائم کر دیا ہے، لیکن کہیں پر بھی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے. یہاں پر پہلے کراچی ہمارے پاس ایسی جو بلڈنگ اتھارٹیز ہیں، پہلے کراچی بلڈنگ اتھارٹی تھی، پھر اس کے بعد سندھ بلڈنگ اتھارٹیز بنی. انہوں نے کہیں پر بھی کوئی ایسا اسٹرکچر نہ ہی ان کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، نہ ہی ان کی طرف سے سنبھالا جاتا ہے. 1945 میں جب یہاں پر سونامی کے اثرات آئے تھے تو اس کے بعد یہاں بہت بڑا ایک نقصان ہوا تھا. اگر آج اس طرح کا سونامی آتا ہے
तो हमारे पास कोई इस तरह के इकदाम मौजूद नहीं है जो हम फौरी तौर पर कर सकें। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि जनाब एक दारुल हुकूमत और दूसरा दारुल हुकूमत, देखिए इस्लामाबाद जितना ही प्राइम था कराची, जब तक कराची 1963-64 तक यहाँ पर रहा, उस वक्त तक कराची में प्लानिंग बहुत ज़्यादा मजबूत थी, 1960 तक। उसके बाद जो प्लानिंग का नुकसान हुआ है उसको आप देखते जाएं कि इसके बाद इसको मुसलसल नज़रअंदाज किया गया, सूबाई हुकूमतों हों, वफाकी हुकूमतों हों। नहीं, ये तो आप फिर बात करते हैं, फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी। उसके बाद फिर अयूब साहब के बाद भुट्टो साहब के बाद जहाज के बाद मोहतरमा नवाज शरीफ, सबने नज़रअंदाज किया। देखिए बिल्कुल 30 साल MQM ने भी किया। देखिए पता नहीं क्यों आप सिंध में हुकूमत थी उनकी, नहीं कराची की, जिसकी आप बात कराची की कर रहे हैं ना, उनके 2 मेयर रहे, हाँ 2 महीने बस उनके 2 मेयर रहे सिर्फ। अच्छा, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं कोई नहीं, आप प्लीज आप खेलते रहे, आप पता मैं ऐसे ही बैठूं, मैं सुन 1960 में आबादी कितनी थी कराची की? 1960 में आबादी कितनी थी कराची की? देखिए नहीं आप कहते देखिए मैं जो बात कहना मैं दूसरे एंड पे खड़ा। देखिए आप अच्छा नहीं, एमक्यूएम का क्योंकि दावा है कि कराची को हमसे पहले किसी ने नहीं बनाया, हमने ही बनाया है, हमारे बाद भी अब देख लीजिए जो मेयर साहब का हाल है, हम ही बनाएंगे। देखिए अली सबसे अहम नुकता पता क्या, अगर सर मैं दूसरे एंड पे खड़ा हूँ, 5वीं बॉल पे ये रन ले लेते हैं, फिर दूसरा ओवर ये खुद खेल रहे होते हैं, आप बॉलिंग करा रहे हैं, आप कह रही हो सर। अगर तारीख को देखा जाए अब बीट हो रहे हैं ना, समझ नहीं सकते। 1947 में पाकिस्तान के कायम होने के बाद एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया था, बहुत बड़ा आबादी का यहाँ बर्डन आया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि उसने उसको 20 साल तक उस पर कोई इतना असरअंदाज नहीं हुआ। आज भी हम जो बिल्डिंग्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंध हाई कोर्ट की या दीगर हो, वो उसी ज़माने की तामीर है। हमने कोई ऐसी इमारत तामीर ही नहीं की, ना इस शहर में उसने उस तरह की जगह रखी कि जनाब ये इमारत तामीर हो सकें। और उसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं, चाहे उसमें MQM हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, और एमक्यूएम कहते हैं ना जी फुल फ्लैश इख्तियारात नहीं, हमें सिंध हुकूमत देखिए बहुत इख्तियारात थे उनके पास, झूठ बोलते हैं। देखिए उनके पास क्या मुशर्रफ दौर में क्या उनके पास अरबाब साहब थे ना उस वक्त, तो देखिए मुशर्रफ दौर में तो मुस्तफा कमाल ने काम किया ना उस दौर में, तो ये तस्लीम करेंगे। खान साहब के भी उस काम को फिर सराहें, बिल्कुल सराहते हैं, काम किया उन्होंने भी किया। रहमतुल्लाह खान साहब ने, आप भी सर दोनों को मानते हैं? देखिए उस ज़माने में मुशर्रफ साहब ने जितनी इन्वेस्टमेंट की कराची शहर में वो बिल्कुल काबिल तहसीन है, और बल्कि उनको हम ये कहते हैं कि उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ पर, उसमें चाहे रहमतुल्लाह खान साहब हो, चाहे मुस्तफ़ा क्या नाम है कमाल साहब हो, सही है, और वो हो। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में ही आप कह रहे हैं सिंध में काम हुआ है, इसके अलावा नहीं हुआ? मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, जी मैंने लफ्ज़ फोकस किया पूरा कराची सिंध का हिस्सा है, जाहिर है। देखिए उस समय बहुत कुछ हुआ, मैं हर एक के एक डिस्क्रिमिनेशन पे बात नहीं करना चाहता कि इसके साथ क्या मामला हुआ। प्लीज देखिए कराची शहर, हमने MQM के बारे में कहा है। अच्छा कहा है, हदफ नहीं करते, नहीं मैंने कहा, हमने कहा, लेकिन ये कहा जाए कि उस पार्टी की 16 साल 14 साल के गवर्नर ये जरूर कहा जाए कि 16 साल उस पार्टी की क्योंकि सियासी जमातें, नहीं ये जरूर बताया जाए कि 16 साल सियासी जमातें ये कहती हैं कि जी हमें वक्त नहीं मिला। खान साहब चले गए, 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की, वो कहते हैं जी मुद्दत अगर हम कंप्लीट करते 1.5 साल और हो जाता तो हम बहुत कुछ कर देते। मियाँ साहब ने भी कहा कि मुद्दत कंप्लीट नहीं होती। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कह सकती, मुसलसल चौथी हुकूमत है, 20,000 अरब रुपया मिला NFC की मद में, वो ज़ाहिर है खर्च हुआ होगा। सर कुछ आदाद शुमार आपके पास भी होंगे? देखिए मैं तमीज़ बांध ही रहा था कि मेरे भाई ने बोला कि ये रन ले लो, तफसील से बताएं। अच्छा, कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है, ठीक है ना। दुनिया में 5 या 6 शहर ऐसे हैं जिसकी आबादी इससे ज़्यादा है। मैं नहीं देखता कि बहुत ज़्यादा कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हो यहाँ पे, कोई इक्का दुक्का कभी आ जाता है, वो भी वही होता है जिसको पहले से नोटिस दिया जाता है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर ख़राब है और उसको बहुत बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। ज़्यादा कर ख़राब ये हुआ है 2022 की जो बदतरीन बारिशें हुई हैं, उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ, उसके बाद संभल सही से नहीं पाया। उससे पहले अच्छा था इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का, बेहतर था। नॉर्थ नाज़ाबाद की रोडें जब ये बात कर रहे हैं, शाहराह फैसल, गुलशन की सारी रोडें बहुत बहुत अच्छी थी, बेहतरीन नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था जैसा कि आजकल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल नहीं था, तबाहाल भाई जिस तरह ये कहते ना तबाह हो गया, खत्म हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं था। नहीं जो आजकल की सूरत हाल है, जिस तरह इन बारिशों से तबाह हुआ, ऐसा नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे उन्होंने बोला कोई इमारत ही नहीं बनी, कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी, बस वो उस वक्त की बनी भी है और वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। शहर में कई अंडरपासेस बने हैं, कई ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं, आपकी बहुत ज़्यादा जो है सड़कें और यूनिवर्सिटीज और पब्लिक हॉस्पिटल चीजें बनी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दुरुस्त सड़क का नाम बता दें। यूनिवर्सिटी बनी कोई एक सही सड़क का नाम बता दें। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? नहीं अभी कोई एक सड़क का नाम बता। जी सर, साथ वो दोनों तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कोई एक सही सड़क का नाम। देखिए मैंने क्या बोला,
अभी की जैसी सूरत हाल है ऐसी नहीं थी। जो सड़क का नाम पूछते हैं, मैंने कई सड़कों का नाम बताया। देखें, ताइक रोड की रोड बड़ी अच्छी बनाई गई, गुलशन इकबाल की रोड नीपा से लेके वो आगे तक बनाई गई, नॉर्थ नाजाबाद की 1.5 बनी। किलोमीटर की सड़क 62 करोड़ में बनी है यार वो उसने जितना क्या इस्तेमाल किया ये अब वो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। मैंने ये बताया कि और बहुत सारी रोडें बता देता हूँ जो अच्छी बनी हुई थी। इस वक्त सूरत हाल जरूर खराब है, मैं किसी को अच्छी डिफेंड बनी हुई नहीं थी, कर खराब कैसे हो रहा, गई वो? बारिशों से हुई है। बारिशों में दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होता है। नहीं होती है बारिशों में, इस तरह से सड़कें नहीं बैठ इस्लामाबाद में भी हाल था। नहीं है वहाँ इतनी शदीद बारिश के बावजूद यार इस्लामाबाद की आबादी देखो, इस्लामाबाद की गाड़ियां देखो, सड़क का आबादी से क्या जितनी ताल्लुक वहाँ है? यार अच्छा, सड़क का आबादी और गाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ताल्लुक उस तरह से थोड़ी होता है कि सड़क बैठ जाएगी, इतनी हेवी ट्रैफिक थोड़ी होता है कि इस तरह से यार सड़क बैठ जाएगी। 3 करोड़ की आबादी किसी शहर को इस्तेमाल करे और 30 लाख की आबादी किसी शहर को इस्तेमाल करे, और मेरे भाई को यही नहीं पता कि कोई फर्क होता है कि नहीं होता। देखें, सड़क का जो बनाई जाती है वो हेवी ट्रैफिक से लेकर हर उस तरीके से बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि सड़क बनाई जाए कि जनाब स्पेसिफिक ये 2 गाड़ियां गुजर सकती है, तीसरी नहीं। आप ब्रिजेस की बात कर सकते हैं, आप अंडरपासेस की बात कर सकते हैं, आप उनकी बात कर सकते हैं कि उसमें हेवी ट्रैफिक जा सकता नहीं आ सकता। एक सड़क मौजूद है, आप सड़क को ये कहते हैं कि जनाब वहीं पर इस्लामाबाद की सड़क में बारिश में नहीं बैठती, कराची की सड़कें ख़त्म। भाई एक बारिश मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 साल 2020 से लेके ये 2024 तक बहुत बुरा हाल हुआ है। इससे पहले कराची इतना बुरा नहीं था जितना कि अब हो गया, और उसमें बेहतरी की गुंजाइश पहले भी थी और अब तो बहुत ज्यादा जरूरत जाते है आखिरी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने का। सारी की सारी तवज्जो इस वक्त इसकी रोडों को सही करने सर की एक प्रोग्राम भी पर देने की आपने जरूरत भी है। इस पे प्रोग्राम किया, हमने भी प्रोग्राम किया था। जाते जाते इस खबर पर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नताशा के हवाले से जो कारसाज ट्रैफिक हादसा था, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि जी नताशा साहिबा जो है नशा भी करती हैं और उसके लिए लेकिन अब मुहिम चलाई जा रही है, जिन्हें हम बर्गर फैमिलीज़ कहते हैं, बाकायदा तौर पर मुहिम चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये गरीब क्यों शोर शराबा कर रहे हैं। दियत की रकम बनती है चांदी के हिसाब से 68 लाख रुपए, पैसे लें, खामखा शोर शराबा ना करें। इस तरह के हादसात होते रहते हैं शहर में, क्यों बढ़ा चढ़ा कर इस तरह के बयान कर रहे हैं। और वो खातून नताशा नाम की जो पकड़ी गई, उनके हवाले से मुहिम में ये भी कहा जा रहा है कि जी बड़े बाप की, बड़े असर रसूख वाले की बीवी है तो क्या है, आप लोग मेहनत नहीं कर सकते, उन्होंने मेहनत करके आज इससे मकाम हासिल कर लिया तो क्या है। सर ये मुहिम चला रहे हैं, उनके दोस्त हैं, उनके कज़न्स हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और तंज कर रहे हैं कि जी गरीब की हैसियत यही है, ज़्यादा शोर ना करें, 68 लाख रुपया पकड़ें और ज़िंदगी बनाएं। यार ये तो वही बात हो गई कि उनमें से किसी का बच्चा अगर गवर्नमेंट्स की या किसी गरीब की गाड़ी से मारा गया होता तो क्या वो 68 लाख रुपए देके उसको छोड़ देते? या अगर ऐसा हो जाए खुदा ना खाता उनमें से किसी के, तो वो 68 लाख रुपए देके माफ़ कर देंगे उसको? वो तो उसके पूरे ख़ानदान को बंद करवाएंगे और पता नहीं क्या क्या केस डलवाएंगे। और ये अगर खाली एक्सीडेंट होता, देखिए अली, मैंने जब प्रोग्राम किया तो मैं उस वक्त कहा था, अगर ये खाली एक्सीडेंट होता ना, एक्सीडेंट कैन हैपन विद एनीबडी एनी टाइम ना, वो होते देखिए नहीं, एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट से कुछ ज़्यादा था। अब तो प्रूफ हो गया उसकी मेडिकल रिपोर्ट से कि वो नशे में थी, ठीक है ना। दूसरा, वो पहले एक गाड़ी को मार के आई थी और तेज जा रही थी, उसको वो 2 इंसान, एक बाप और बेटी नज़र नहीं आए और उसको जिस तरीके से उसने कुचला है वो एक्सीडेंट से कहीं ज़्यादा की बात है, तो उसको एक्सीडेंट करार देना ही सबसे पहली बात गलत है। दूसरा, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, कैंडल अंकल आंटीज और एक कैंडल फैमिली होती थी, जब कभी गवर्नमेंट से या किसी गरीब से कुछ हो जाता था तो वो 3 तलवार पे, 2 तलवार पे, जगह जगह वो आ जाती थी और वो करके। वो किधर है भाई? वो क्या सोई हुई है या कैंडल्स नहीं मिल रही हैं तो मैं कैंडल डोनेट कर देता हूँ, आए और उस बाप बेटी के लिए, जो बेचारा बाप ने पापड़ बेच के उस बेटी को पढ़ाया, और वो बेटी जब वो पे बैक करने के लिए पहली तनख्वाह जब उसको मिली तो उसके बाद उसको जो है वो एक अमीर औरत ने ताकत और पैसे के नशे में उसको मार दिया। आज आप बोलते हैं कि 68 लाख दो, आपके अगर बच्चे मरे, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो ये बात कर रहे हैं, तो आप 68 लाख दे के छोड़ देंगे? तो ये बातें जो है ना, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं कि ये, और जो मिडिल क्लास और जो तबका है वो उसको और हिमायत उसकी करेगा इंशाल्लाह ताला। वो कह रहे हैं जैसे हादसा रोजाना होते रहते हैं और मोहतरमा 8-10 कंपनियों की डायरेक्टर भी हैं, गरीबों की वैसे इतनी मदद करती थी, क्यों खामखा की इतना शोर शराबा हो रहा है, शहर में इतने हादसा होते हैं, सबको क्यों नहीं पकड़ा जाता, इसको क्यों जानबूझ के इतना उछाला जा रहा है? देखिए अली, पिछले दिनों एक वाकया हुआ सीयू पर। एक औरत एक गाड़ी चला रही थी, उसका बेटा बैठा हुआ था और उस औरत ने गाड़ी, एक्सीडेंट हुआ उसका, और उसने एक रिक्शे और एक गाड़ी को मार दिया। वहाँ पर हुआ ये कि टायर बर्स्ट हो गया था, सही है, और काबू में नहीं रही गाड़ी। उसके बाद वो काबू में नहीं रही गाड़ी और वो एक हादसा था, वो हादसा कहलाता है।
اور اس کے بعد اس خاتون کے خلاف کسی نے کیمپین نہیں کی. آپ نے کبھی اس خاتون کا نام سنا؟ آپ نے کسی نے دیکھا کہ اس نے کیمپین کی؟ یہاں کیمپین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون نے پہلے جان بوجھ کے ایک گاڑی کو ہٹ کیا ہے, جان بوجھ کر ہٹ کیا ہے. ہٹ کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی, اور وہاں پر فرار ہونے میں اس نے اس کا قتل کیا. نہ اسے حادثہ کرا نہیں تھا, اس کا قتل کیا. دوم, اس کے بعد جب وہ عورت کو پکڑا گیا تو اس نے اس طرح سے کہا کہ جناب وہ تو چھوٹ جائے گی. وہاں پر جو اس خاتون کے حمایتی لوگ آئے, اس میں ایک دو خواتین آئیں, اس کا شوہر یا دیگر لوگ آئے, انہوں نے اس طرح کا بیہیو کیا کہ جیسے یہ حادثہ نہیں ہے, بلکہ بھائی ہم تو بڑے ہی اشرافیہ کے گارڈ لوگ پہنچ چکے تھے ہیں, وہاں, ہم اشرافیہ کے لوگ ہیں, ہمیں ہاتھ کیوں لگایا؟ اس کے شوہر نے گارڈ بھیج دیے تھے, فوراً گارڈ آ کے بچا کر لے کے جانے چاہ رہے تھے. ہمیں ہاتھ کیوں لگایا؟ صحیح نا. بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے, حادثہ نہیں تھا. یہ حادثہ نہیں تھا, حادثہ اس عورت کے ساتھ ہوا, کسی نے کچھ نہیں کہا. جبکہ اس میں رکشہ ڈرائیور زخمی ہوا, اس میں وہ گاڑی والا زخمی ہوا, کسی نے کچھ کہا. جب آپ ایک قتل کرتے ہیں اس کے اوپر آپ بدماشی کرتے ہیں, یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہونا چاہیے. میں تو اس برانڈ کا بھی کہہ رہا ہوں, آپ جن 6-7 کمپنیوں کی کہہ رہے ہیں ان سے وہ تمام چیزیں لے لینی چاہیے کہ جناب یہ واپس کریں آپ, اور بائیکاٹ ہونا چاہیے. جس طریقے سے یہاں پر لفظ ذرا سا سخت ہو جائے گا, لیکن جس طریقے سے ہم نے یہاں پر اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے, اس طرح اس کا بھی ہونا چاہیے. جناب اس کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. بھلا نگہبان.